کا سبب بنتا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ سید صاحب آپ پہنچ گئے باہر ماشاءاللہ؟ چلیں آپ دکھائیں ناظرین کو ہمارے کتنے سارے لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ آپ کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ مارکی کے باہر ٹھنڈ بھی ہوگی، لیکن آپ بھی انشاءاللہ اچھی نیتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، آپ کو بھی برکتیں ملیں گی۔ جی سید صاحب، یہاں پر انشاءاللہ جو عاشقان رسول موجود ہیں، سوال کے جواب کا دینے کے لیے تیار ہیں سارے؟ چلیں دیکھیں تیار تو ہیں، جواب آتا ہے کہ نہیں، یہ اصل بات ہے نا۔ ایک سوال ہم یہ کر رہے ہیں اور اس سوال کا جواب آپ سے لیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا نام بتائیے۔ آپ بتائیں گے؟ فوراً ہاتھ اٹھ گیا ماشاءاللہ۔ نام بھی پوچھئے، کہاں سے آئیں یہ بھی پوچھئے گا ان سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاصل پور سے ہوں، جی جی، احمد علی، اور میں نیت کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اسی مہینے 12 دن کے قافلے میں جاؤں گا۔ کیا بات ہے، حاصل پور والوں نے اب تک تو ریکارڈ قائم رکھا ہے۔ دل خوش ہو رہا ہے کہ ہر صحیح جواب بھی دے رہے ہیں اور 12 دن قافلے کی نیت بھی کر رہے ہیں۔ زندہ باد حاصل پور والوں ماشاءاللہ۔ جی اب جواب دیجئے۔ حضرت زید۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ۔ انہیں بھی انشاءاللہ یہ مبارک تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک سوال میں کروں گا سید صاحب، 12 دن قافلے کی نیت سے باہر جو اسلام میں موجود ہے وہ جواب دے دیں۔ اصحاب بدر کی تعداد کیا تھی؟ واہ واہ، اصحاب بدر کی تعداد دیکھیں کون بتاتا ہے۔ اور پھر میں نے سارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک نیت بھی کروانی ہے انشاءاللہ، بڑی پیاری نیت کریں گے انشاءاللہ اصحاب بدر کی نسبت سے۔ جی ایسا ماشاءاللہ اچھی نیت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، 12 دن سے اب یہ 30 دن کی طرف چلے گئے۔ ایک ماہ ارے کے لیے۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سجاد اتاری وہاڑی سے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ یا سیدی، ایک ماہ کے مدنی قافلے انشاءاللہ 12 دسمبر سے سفر جاری ہوگا، ماشاءاللہ۔ اور اصحاب جو کہف کی تعداد اصحاب بدر، اصحاب بدر 313 تھی۔ جی اصحاب بدر کی تعداد 313، جواب ان کا بالکل درست ہے۔ اور میں یہاں ایک نیت یہ کروانا چاہوں گا کہ علماء فرماتے ہیں، یہ بڑا خاص عدد ہے، یاد رکھیے گا، اس عدد میں بہت راز ہے۔ 313 اصحاب بدر کے نام پڑھ کر اگر آپ کسی مشکل میں ہونا تو ان کے نام پڑھ کر دعا کریں تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ لیکن آج ہم نے ان کی نسبت سے ایک نیت کرنی ہے کہ علماء کہتے ہیں جو کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لیا کرے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور ہمارے نیک اعمال میں بھی یہ نیک عمل ہے۔ تو میں بھی نیت کروں، یہاں موجود اور دنیا بھر میں جتنے ناظرین ہیں آج نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ پڑھیں درود پاک، پھر برکتیں دیکھیں انشاءاللہ کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ چلیں جناب اب چلتے ہیں ہمارے سیگمنٹ عشق کے بول کی طرف۔ سرگودا والوں سے پہلا شعر سنیں گے۔ وہی سر بر سرے محشر بلندی پائے گا جو سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی سر بر محشر بلندی پائے گا جو سر، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا۔ کیا بات ہے، یہاں دنیا میں ان کے آستانے پر جھکا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ یقیناً روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین روز محشر صرف اسی سے خوش خدا ہوگا، یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا۔ یہاں دنیا میں جس نے مصطفیٰ کو خوش کیا ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری ہے سرگودا والوں کی۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روضہ انور مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے۔ سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا
मैं पहुंचूं कुएं जाना में गरीबा चाक सीना चाक मैं पहुंचूं कुएं जाना में गिरेबां चाक सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया। मैं पहुंचूं आमीन, आमीन। जाना में गरीबा चाक सीना चाक मैं पहुंचूं जाना में गरीबा चाक सीना चाक गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जनाब, जुर्मो इसियां पे अपने लजाता हुआ, जुर्म-ए-सियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरे जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार। बहुत ही खूबसूरत कलाम है। मदीने हाजिरी देनी कैसे है, आका की बारगाह में हाजिरी का अंदाज क्या होना चाहिए। आशिक मदीना अमीर अहले सुन्नत ने कलाम कमाल का लिखा। जुर्म इसियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जुर्म-ए-सियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, जुर्म-ए-सियां पे अपने लजाता हुआ और अश्के नदामत बहाता हुआ, तेरी रहमत पे नजरें जमाता हुआ, दर पे हाजिर ये तेरा गुनाहगार है। कुछ ना सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद तकवा मेरे पास सरकार है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर सर पे गुनाहों का अंबार है। क्या खूबसूरत एक सोच दी है अमीर अहले सुन्नत ने। लोग मदीने जाते हैं, काश ये कैफियत बने कि किस दरबार में जा रहा हूँ, वहां जाकर पेश क्या करूंगा। है दुनिया में कोई अपने प्यारे के पास जाता है तो कोई गिफ्ट लेकर जाता है, हम नबी पाक के दरबार में जा रहे हैं, सजदों की सौगात भी नहीं है, कोई नेकियों का तोहफा भी नहीं है, बल्कि गुनाहों का अंबार है। बस आका की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और नबी पाक से शफात की खैरात तलब करनी है। कुछ न सजदों की सौगात है और न कुछ ज़ुहद तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुछ न सजदों की है और न कुछ ज़ुहद तकवा मेरे पास सरकार है। चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर चल पड़ा हूँ मदीने की जानिब मगर हाय सर पर गुनाहों का अंबार सुभान अल्लाह। अल्लाह ऐसी हाजिरी अता फरमाए, रिक्कत कल्ब वाली और मकबूल हाजिरी अता फरमाए। तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, देखोगे चमन वालों जब अहद खज़ां आया। देखोगे चमन वालों जब अहदे खज़ां आया। इस शेर को समझिएगा नाजरीन, कयामत का दिन, जब कयामत करीब आएगी ना, तो कयामत से पहले तकरीबन दुनिया में आफतें होंगी, मुसीबतें होंगी, क्योंकि दज्जाल भी घूम रहा होगा, मगर मदीना वो होगा जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आला हजरत कहते हैं तैबा के सिवा सब बाग पामाल खज़ां होंगे, देखोगे ए तैबा के सिवा सब बाग पामाल फना होंगे, देखोगे जहां वालों जब अहदे खज़ां आया। जब खज़ां का दौर भी आएगा ना, तो इंशाअल्लाह मदीना उसी तरह चमकता दमकता रहेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर और वो संगे दर, आंख और वो बज़्म नूर। सर और वो संग दर, आंख और वो बज़्म नूर, जालिम को वतन का ख्याल आया तो कहाँ आया। हाय हाय, आला हज़रत की कमाल की बात देखें कि बंदा जब मदीने में होता है और वहां जाके जब घर जाने की सोच रहा होता है, तो आला हज़रत कहते हैं सोचो तो सही, सर कहाँ था? सर वहां था कि जहां प्यारे आका का दर का संग था, संगे दर था। और आंख कहाँ थी? वो बज़्म नूर देख रही थी। वहां जाकर क्यों वतन के बारे में ध्यान आया? जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया? जवाब दुरुस्त दे दिया है। सर और वो संगे दे, आँख और वो बज़्म नूर से, और वो संगे दे, आँख और वो बज़्म नूर, जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया। जालिम को वतन का ध्यान आया तो कहाँ आया। तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे, तैबा के सिवा सब बाग पामाले फना होंगे, देखोगे चमन वालों, देखोगे चमन वालों जब अहदे खज़ां आया। क्या बात है, क्या बात है जनाब। अब बारी है, कुछ तर्ज सुनाई जाएंगी दोनों टीमों को, और वो तर्ज इन्होंने पहचाननी होगी। बारी सरगोदा वालों की है, गौर से सुनिए ये कलाम कौन सा है। हाँ, नातों का शौक रखना है ताकि तर्ज से भी पहचान ले के ये कलाम कौन सा है। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है, मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की। ये भी कलाम मेरा ख्याल इस तर्ज पे आ जाएगा। दोबारा तर्ज सुनाइएगा। वैसे तो पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, ये वो तर्ज कलाम है, लेकिन अर्श हक भी जरा इस तर्ज में सुना दे। अर्श हक है। अर्श हक गए मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। क्या प्यारी तमन्ना है आला हजरत की इस कलाम में कि देखनी है हश्र में, जिससे मोहब्बत होती है ना, और जब उसको इज्जत मिले, उसको मकाम मिले, और आका को तो कयामत के दिन मकाम में महमूद अता किया जाएगा। तो उशाक क्या सोचते हैं कि कयामत के दिन जो मेरे आका को मकाम मिलेगा ना सारे आलम के सामने, तो हमने वो इज्जत भी देखनी है और अपने दिलों को और इंशाअल्लाह जिला बख्शेंगे कि देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बल्कि क्या खूबसूरत बात आला हज़रत देखते हैं, जब नबी पाक आएंगे ना कयामत के दिन, तो गुनाहगार जिनको बेड़ियां लग गई होंगी, जिनके लिए जहन्नम का हुक्म सुना दिया गया होगा, लेकिन जब आका आएंगे और इशारा फरमाएंगे तो क्या होगा? हम
तर्ज में भी सुनते हैं कि टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, कैद में होंगे, परेशान होंगे, मगर जब आका आएंगे और शफात फरमाएंगे टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, हश्र को खुल जाएगी, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। जनाब अब मुल्तान वालों की बारी है। मैं देख रहा हूं कि जितने इस्लाम भाई यहाँ हैं बहुत बड़ी तादाद में बाहर हैं। हासिलपुर वालों आपने छोटा इंतजाम कर लिया है, आपको कोई स्टेडियम करना चाहिए था, क्योंकि बाहर शायद इतने लोग हैं कि पूरा एक सिलसिले की क्राउड तो बाहर है, और जाहिर है अब इनको जब बाहर वालों की भी जगह नहीं मिलेगी तो मैं माजरत करूंगा, फिर आप अपने घर जाकर ज़हनी आजमाइश का सिलसिला, क्योंकि लाइव तो आ ही रहा है, तो जिन भाइयों को बाहर जगह ना मिले, पंडाल में बाहर भी फुल हो गया है, तो अब अगर आप आ रहे हैं तो फिर आप अपने घर में मदनी चैनल देखें, घर वालों के साथ देखें, शायद इनको अंदाजा नहीं होगा कि इस मोहब्बत का इजहार करके इतनी बड़ी तादाद में आप आ जाएंगे। चले जनाब मुल्तान वालों को तर्ज सुनाइए। जायरों पास अदब रखो, हवस जाने दो, आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो, आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने दो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, तर्ज में सुनाइए। जायरों पास से अदब रखो, जायरों पास से अदब रखो, जायरों पास से अदब रखो, हवस जाने दो, जायरों पास से अदब रखो, हवस जाने दो। आंखें अंधी हुई हैं इनको तरस जाने। चले जनाब, यहाँ तो टीमों ने जबरदस्त जवाब दिए हैं। क्या हासिलपुर वालों को कुछ अशार पूछे, बताएंगे आप लोग? याद है कुछ अशार? चले आपसे आसान शेर पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे खुशी ये हो रही है कि आज देखिए, आज ट्रेंड यही रहेगा, जवाब देने वाला मदनी काफले की नीयत भी, काफले की नीयत भी और तारीख भी। माह मदनी काफला है ना, माह काफला इंशाल्लाह मेरी भी कल नीयत है, आप ही के डिवीजन में इंशाल्लाह काफले में सफर कर रहा हूं इंशाल्लाह, तो सब सफर करें इंशाल्लाह और काफले में जाकर बरकतें लूटें। अच्छा जनाब, शेर पूछता हूं और आसान शेर है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इतना आसान आपने पूछ लिया तो 30 दिन का मदनी काफिला होना चाहिए। चले जनाब, कोई दे दे 30 दिन काफिला, मना थोड़ी, 12 माह के काफिले की भी इजाजत है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जनाब जी, नेगोशिएशंस हो रही हैं काफिले पर जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर ऐन तेरा सब घराना नूर। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नाम क्या है आपका, कहाँ से आए? मोहम्मद साजिद बशीर। अच्छा, कहाँ होते हैं आप? फैजान मदीना हासिलपुर। अच्छा, तो अब काफिले में भी कोई सफर है ना? हाँ जी, 30 दिन। क्या बात है जनाब, आइए मिलकर सुनाइए ये शेर, सब मिलकर पढ़ेंगे। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का, पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का,
तर्ज आपको भी सुनाई जाएगी। हासिल पुर वालों, अब आपने भी तर्ज पहचाननी है। बताइए ये कलाम कौन सा है? जी वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत कलाम है जी। सही साहब, इसके बाद बाहर भी जाइएगा, वहां वालों से भी एक शेर सुनेंगे जी। छोटे से बच्चे ने हाथ उठाए। चले सने सुनाइए। अब अब्बू को लेके जाएंगे फिर लगता है काफिले में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 64 फतेह कॉलोनी से हूँ। अच्छा माशाल्लाह। कलाम कौन सा है ये? तो दोबारा सुनना है। आप खड़े भी हो गए और मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन क्या बात है, गुलाम वाकई माशाल्लाह, सारे ही पंजतन के गुलाम हैं। ये शेर हम आपसे तर्ज में सुनेंगे। अच्छा, आपसे सुनेंगे। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो सैयद साहब बाहर पहुंच गए आप? जी लब्बैक। चले जनाब, देखें अब बाहर ठंड में बैठे आशिकाने रसूल ऐसा करते हैं, इनसे ऐसा शेर सुनते हैं कि जो है ना वो जिसमें इश्क़े रसूल की हरारत पैदा हो जाए। एक ऐसी आग है जो आग बुझा देती है। वो कौन सी आग है और वो कौन सी आग बुझाएगी? सर्दियों में आग की ज़रूरत तो होती है ना, एक और आग भी है जो इंशाल्लाह जहन्नम की आग बुझाएगी। शेर ये है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। हाँ, अगर ये जवाब दुरुस्त दे देना है सब जी, तो हम इंशाल्लाह ये मुबारक तबरुकात के साथ साथ सौगात मदीना भी देंगे। अरे वाह भाई वाह, शेर थोड़ा मुश्किल है, देखें क्या। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। है माशाल्लाह मौजूद है कोई? चलें जनाब, आला हजरत भी कमाल करते हैं। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिन फैज 213 फतेह फौजियां वाला से। क्या बात है, फौजियां वाला। चलें जनाब, शेर सुनाएं। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। क्या बात है, क्या बात है, कमाल करते हैं आला हजरत। वो ना एक मुहावरा है कि सस्ते छुट गए और आज बचत हो गई, तो इस मुहावरे को कैसे इस्तेमाल किया कि ए इश्क़ रसूल तेरे सदके हम जहन्नम की आग से जलने से सस्ते छूट गए। कैसे छूट गए कि दिल में नबी पाक के इश्क की आग लगा ली है, इंशाल्लाह ये आग उस आग को बुझा देगी। अल्लाह ऐसी इश्क रसूल की आग नसीब फरमाए। जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है, तर्ज में सुनते हैं। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएंगे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएंगे। इंशाल्लाह वो आग बुझा देगी इंशाल्लाह। जनाब आइए स्कोर बोर्ड की तरफ जाने से पहले कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। मैं सैयद गुलाम कादर बुरे वाला से अर्ज कर रहा हूँ।
अब्दुल हबीब भाई, हासिलपुर में आपकी आमद मरहबा, खुश आमदीद। मुझे आपका प्रोग्राम यानी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं बड़ा होकर और मैं दीन बनूंगा। हम सब माशाअल्लाह। घर वाले मिलकर देखते हैं दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाल्लाह, यही तो हम चाहते हैं कि इल्म दीन का शौक पैदा हो। वो कहते हैं ना, लोग एक बात करते हैं, यार खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक वकील होना चाहिए। सच्ची बात ये, खानदान में एक आलिम दीन होना चाहिए, बल्कि हर घर में एक आलिम दीन, या इस्लामी बच्चा हो या बच्ची हो या वालिदैन में से कोई बन जाए, पूरी फैमिली के इंशाअल्लाह भाग जाग जाएंगे।